Hi, I'm Shishti, and welcome back to my channel. And if you're new here, welcome. So the other day मैंने ना एक Q&A डाला था Instagram पे and I asked कि I was actually thinking of posting a video for the underlined. I had some topics in my mind but मैंने अभी proper research नहीं करी है उस पे. So I was like ठीक है मैं पूछ लेती हूँ कि क्या देखना पसंद करोगे आप लोग and accordingly I would have done some research. अगर easy होता तो मैं बना देती. बट सबको जानना है मेरे साथ क्या हुआ था पिछले साल. Ever since I've posted that 2025 wrapped on my profile, I have got so many people questioning me कि like क्या हुआ था bro, please details. मतलब मेरे DM में तो कितने सारे में and मैं सोच रही हूँ कि भाई मेरे को मतलब like मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है. And so many of you were like कि, okay, we are praying for you this year. Yeah, keep praying, please keep praying because you know, touch wood. बट पता है मैं ना रील्स पे देख रही हूँ बहुत लोगों के ना ये साल मतलब अभी 11 दिन में ही शायद बहुत ट्रेजेडी हो चुकी है. मैंने मतलब मैं बहुत रील्स पे देख रही हूँ कि 2026 is gonna be my year. I said like 2026 is gonna be my year and the first 10 days of 2026 and everyone is crying. So मेरे साथ ऐसा अभी तक टच वुड थू 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 थू. सो आई डिसाइडेड फाइनली दैट ठीक है मतलब मैं कितना ही लेट से बनाती 2025 रैप्ड अप, मैं जनवरी को छोड़ के फरवरी में तो नहीं ही बनाती. तो मैंने सोचा कुछ नहीं मिल रहा तो अभी मैं एक ये वीडियो बनाती हूँ. मैं सोचती हूँ ना कि मैं इंट्रो ज्यादा इतना बड़ा नहीं करूंगी बट आई थिंक 4 मिनट से ज्यादा हो गए हम लोग यही कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सो इट ऑल स्टार्ट्स एक्चुअली इन दिसंबर 2023. नो 2024. ये 2025 का रैप्ड है. अभी 2026 चल रहा है. या आई हाँ अभी 2026 चल रहा है एंड लास्ट ईयर इट वाज 2025 एंड उसके पहले 2020. हाँ तो दिसंबर 2024 की बात है एंड 23 दिसंबर 2024 के रात की बात है, ठीक है, लाइक रात की. व्हाट हैपेंस इज आई गेट अ डीएम, ठीक है. मतलब 2025 रैप्ड ही दे रही हूँ बट लाइक ये जो 7 दिन पहले का हुआ था वो एक सीन सेट कर रही हूँ तो समझ जाना. So I get a DM from this account. It was some Firangi's account, but like I get a DM and it said bonjour, and I was like okay, मतलब ठीक है ऐसे मैं accept नहीं करने वाली थी. But then I tapped on his profile and फिर मैंने देखा तो he looked like my type, like you know, guy in specs and like clean shaved and ऐसे तो साइड ही प्रोफाइल थी बट मतलब मेरे को पता चल रहा था कि हाँ ये मेरा टाइप का मतलब एक लुक्स वाइज तो है. एंड देन आई सॉ हिज बायो में NYU मेंशन, ठीक है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी. तो आई वाज लाइक ठीक है बात करके देखते पता तो चल ही जाएगा. लिटिल डिड आई नो. तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मैंने DM एक्सेप्ट कर लिया एंड आई वाज लाइक कि bonjour. तो फिर I think 2 minutes later his reply comes that oh my god, you know French. The fact कि मुझे पूरा conversation याद है बिना देखे, I am in trouble. Like मेरे को पता चल रहा है but anyway. So he was like oh my god, do you know French? And I'm like कि नहीं, this is all I know, you lost me at bonjour. And then he was like oh okay, and then he go with this whole rant ki you know, sorry to just text you randomly but I was getting your account and my suggestions for so long and I just wanted to check if I know you or not, but then I thought it's very weird but I already sent you bonjour and I tried to delete it but Instagram said oh hello, you want to delete it, you want to save yourself from the embarrassment. No, we don't do it here. You sent it, so now you live with it. Let's call it personality arc and everything. And I was like, okay, he's funny. Like I read that and I blushed. And so I was like, oh, okay, it's chill, relax, nothing like that, nothing embarrassing or whatever.
And then he's like, yeah, thanks. And then he was like, okay, so the name is XYZ. I don't know if I should say the name out loud, but okay, given that he is catfishing a lot of girls, and I'll probably expose his name in the chats on my Instagram story. I don't know, देखते हैं, but ठीक है. So he is like, the name is this, and I know a very common name, but hey, what can we do? My parents named me like this, and I'm my parents' first child. But guess what they did? They thought that, oh, we have to name him. Okay, name him this. So now when you call this name out loud, you have four people and two dogs turning around and saying, yeah, what? Again, funny. तो उसने अपने नाम की पूरी कहानी बताई, फिर मैंने बताया कि हाँ, लाइक द सेम थिंग, सृष्टि इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन नेम, माय पेरेंट्स ऑल्सो थॉट कि क्या ही रखे, तो सृष्टि रख दिया, कुछ मिला नहीं, ऐसे करके ना मैं भी पूरा बता रही थी, ठीक है? तो लाइक द कन्वर्सेशन जस्ट फेल्ट परफेक्ट, मतलब मुझे तो लगा कि ओह माय गॉड, फाइनली समवन हू गेट्स माय सेंस ऑफ ह्यूमर, फाइनली समवन हू गेट्स मी. एंड it nothing felt forced, nothing. I didn't have to think twice कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि इसको समझ भी आ जाए, बट एट द सेम टाइम मैं कूल भी लगूं. नहीं, मैं बस बोल रही थी जो मुझे मन आ रहा था, लाइक जो मेरा मन चाह रहा था मैं बोल रही थी. एंड he was like getting it. He was like, okay, I didn't have to explain my jokes to him, and that was what felt so good. ठीक है, तो दैट हैपेंड. एंड मतलब मुझे ना उस टाइम पे द थिंग इज कि मैं बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन ये सब में मान रही थी, तो मुझे लगा कि, एंड मैंने ना अपनी नोट्स में मैंने लिख के रखा था एक लड़के का पूरा डिस्क्रिप्शन कि ऐसा 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 लड़का चाहिए मुझे लाइफ में मेरी. एंड लाइक मैं चाहती हूँ कि रैंडमली ही मैं मिल लूँ उससे, क्योंकि गिवन दैट आई एम इन ऑल गर्ल्स कॉलेज एंड आई डोंट रियली टॉक टू गाइज अ लॉट. तो एंड मेरा सोशल सर्कल भी बहुत छोटा सा है, तो मतलब मैं तो ऐसे मिल नहीं पाऊंगी किसी से, तो मैं रैंडमली ही मिल जाऊँ. तो मुझे लगा कि ओह माय गॉड, भगवान ने फाइनली मेरी सुन ली. भगवान इज लाइक, ओके, अब तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां होंगी. बट लिटिल डिड आई नो कि भगवान तो ऊपर बैठ के देख के सोच रहा है अभी मजा आएगा ना फिर वो. मतलब भगवान लिटरली मेरी इतनी बुरी तरीके से लेते हैं ना, उनको वो मुझे पूरी खुशियां देने के बाद जो छीनते हैं ना, मुझे लगता है कि उनको मेरे से कुछ पर्सनल ग्रज है, ठीक है? बट दिस इज नॉट लाइक व्हेन आई रियलाइज्ड इट. अभी रुको, अभी आगे बताती हूँ. तो सब सही चल रहा है, ठीक है? एंड मतलब फिर न्यू ईयर आता है एंड ही इज लाइक विशिंग मी, पहले इंडियन टाइम पे, फिर अपने टाइम पे. एंड उस टाइम पे ना ही इज इन यूके. या ही इज इन यूके, लाइक ही वाज हाफ, जो कहानी मुझे बताई थी, तो आई एम गोना स्पीक लाइक दैट ओनली. अकॉर्डिंग टू दैट ही वाज हाफ ब्रिटिश हाफ फ्रेंच, ठीक है? ही वाज नॉट American, but like he was brought up in America, न्यूयॉर्क. तो ऐसे करके ना वो गया था ब्रिटेन, तो ठीक है, तो उधर गया था. एंड देन वी वर टॉकिंग एंड वी वर लाइक, सो व्हाट आर योर प्लान्स? एंड ही इज लाइक, I don't know, I wanna like talk to you and spend some time with you. And I was like, okay. So मैंने बोला, okay, so what do you wanna do? And he's like, let's watch a movie together. Now here's the thing, one of my previous situationships was also long distance, but the thing is that guy never made an effort. He never wanted to watch a movie with me, play games with me, nothing like that. But when I saw initiative coming from his side that, okay, let's watch a movie together, I was like, okay. So I was like, fine. So we started discussing what movie we will watch. And I was like, okay, उस time पे ना Your Fault आई थी, ठीक है? I was like, I want to watch Your Fault because like I'm so excited for it. And he's like, please, that's so problematic. Like, the whole stepper sibling thing, it's so problematic. No, मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है. एंड फिर ना थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई, मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं, मैं ही बोल रही थी कि नहीं नहीं, यू जस्ट, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स काइंड ऑफ हॉट एंड व्हाटएवर. ही इज लाइक, यू आर सो प्रॉब्लमेटिक, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू? आई एम लाइक, शट अप, आई ग्रू अप ऑन Wattpad. एंड ही इज लाइक, या अंडरस्टैंडेबल. तो ऐसे करके ना चल रहा था. तो फिर बहुत सारी मूवीज डिसाइड हुई, कुछ मैंने देख रखी थी, कुछ उसने देख रखी थी. तो फिर लास्ट में ना ही वाज लाइक, फाइन, लेट्स वॉच द वन यू वांट टू. एंड आई वाज लाइक, ओके. तो फिर ना उसने प्राइम खोला. अब क्या हुआ ना कि उसने मेरे को बोला कि उसके प्राइम पे लाइक, क्योंकि उसके पास न्यूयॉर्क का था,
तो आई डोंट नो यूके के प्राइम पे नहीं खुल रहा था, आई कुछ कुछ तो हुआ था, ठीक है, तो नहीं खुल रहा था। तो आई वाज लाइक ओ शिट, नाउ व्हाट डू वी डू? सो ही इज लाइक ओके आई विल बाय इट, एंड आई वाज लाइक नो नो व्हाई विल यू, एंड लाइक हाउ मच इट कॉस्ट? तो आई थिंक कितना तो डॉलर्स बोल रहा था। तो आई वाज लाइक नो नो नो, यू डोंट हैव टू लाइक वेस्ट दैट मच मनी भाई, उतने का मैं प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेती हूँ, एक 3 महीने का या जो भी का आता है पता नहीं, मैं नहीं, मेरे पापा लेते हैं। तो मैं मतलब एक चीज बोल रही हूँ कि मैं, तो मुझे ऐसे लगता है ना कि मैं क्यों किसी से खर्च कराऊं, एंड आई डोंट नो, दिस इज अ वेरी स्टूपिड थिंग अबाउट मी कि लाइक आई डोंट वांट, लाइक मुझे लगता है ना कि भाई अगर कोई मेरे मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहा है तो मैं कम से कम उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के साथ तो थोड़ा खेल लूं, मतलब मैं थोड़ा ऐसे करके थोड़ा उससे मतलब खर्चा तो करवा लूं। बट आई डोंट नो व्हाई हाउ माय पेरेंट्स हैव रेज्ड मी, क्योंकि मुझे लगता है अगर मुझ पे कोई 1 रुपया भी खर्चा कर रहा है तो मैं उस पे 10 रुपए खर्चा करके आ जाऊं। मेरी यही मेंटालिटी होती रहती है भाई, यू नो, लाइक एवरी टाइम आई गो आउट विद अ गाय, आई डोंट गो आउट विद गाइज, बट लाइक there was only one time when I actually dated a didn't date like situationship भी नहीं थी, पता नहीं 4 दिन का तो था, मतलब बात करना स्टार्ट किए थे एंड we were like going out to eat something ऐसे करके, ठीक है। तो एक दिन उसने मेरे को ना चाट खिलाया था, अगले दिन मैंने उसको कोल्ड कॉफी पिलाई, चाट उसने मेरे को 30 रुपए का खिलाया था, और कोल्ड कॉफी जो हम दोनों ने पी थी उसका बिल 300 रुपए आया था। तो मुझे ये लगता है अगर मुझ पे कोई 1 रुपए खर्चा कर रहा है मैं उस पे 10 रुपए खर्चा करके आ जाती हूँ, मुझे समझ में, आई डोंट नो हाउ माई पेरेंट्स हैव रेज्ड मी, बट लाइक या दिस हैपेंड। सो आई वाज लाइक कि नहीं नहीं क्यों ही इतना खर्चा करना है, बट ही वाज लाइक नहीं नहीं आई, बट ही वाज लाइक नो आई वांट टू वॉच इट विथ यू एंड एवरीथिंग। तो इट्स लाइक okay fine, whatever you want to, not on me। तो फिर he bought it and like we watched it together। तो I am just telling you all these details ताकि तुम पिक्चर कर पाओ कि वो बंदा किस तरीके से he was making me believe कि he is so into this shit, ठीक है। तो he did everything, like he everything he could, he was nice to me, he was like he was so, oh my god, you know, he was so, he always reassured every time I doubted anything, every time I was like who is this girl, and he would be like she's a friend, we are like in college together, but if you're uncomfortable I'll unfollow her। He did that, okay। देयर वाज दिस गर्ल हु, अब देखो हर चीज ना स्टेज थी, बट मुझे उस टाइम समझ नहीं आ, मैं क्या, ओ गॉड मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन दिस, पिक्चर दिस, ठीक है। देयर इज दिस गर्ल, he had a fling with her, like he tried casual with her, then he said कि उसको, he realized कि casual is not his thing, so he left it, he started getting feelings, so he left it because casual is not his thing। तो that girl, but she is still in his friend circle and everything। तो ना दैट गर्ल टेक्स्टेड मी, लाइक दैट गर्ल्स अकाउंट, उससे मेरे को टेक्स्ट आता है कि कुछ कुछ तो कि हाउ डज इट फील दैट ही वाज टेस्टेड बाय मी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड सो स्टूपिड टेक्स्ट, ठीक है, लाइक एज इफ पर्पसफुली वांटिंग टू हर्ट समवन। एंड आई वाज लाइक, आई वाज ऑफ कोर्स हर्ट, भाई किसी को भी होगा, अब ऐसे करके कोई आए तुम्हारे पास एंड बोलने लगे तो होगा ही ना। तो फिर मैंने बोला कि भाड़ में जाए, मैंने उस बंदे को बोला कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जस्ट जस्ट लीव, ठीक है, क्योंकि अब मैं गुस्सा हो गई थी। मुझे ट्रिगर करना ना दुनिया का सबसे आसान काम है, मतलब आप मुझे कुछ भी बोलो and मैं हो जाती हूँ, क्योंकि तो मैं हो गई थी। तो अब मैंने उस बंदे को बोल दिया कि लाइक वी आर नॉट गोना टॉक एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। फिर ही इज लाइक टेल मी व्हाट हैपेंड, टेल मी, कम ऑन, यू हैव टू टेल मी, यू कैन नॉट जस्ट लीव लाइक दिस एंड ऑल दैट। फिर मैं उसका मैसेज इग्नोर कर रही थी, तो उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बोला कि इसको कॉल करो एंड प्लीज इससे पूछो कि क्या हुआ एंड ऑल दैट। तो फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को बोला, तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया, फिर उसने उसको जाके बताया, तो वो मेरे को टेक्स्ट करता है कि प्लीज टॉक टू मी, लेट्स सॉर्ट इट आउट, टेल मी व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब सीन ये है ना कि उस टाइम पे ये लोग अपने, इसके एक फ्रेंड की शादी होने वाली थी, तो वेन्यू बुक करने के लिए इटली गए हुए थे, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ही फेड मी। तो उधर गए हुए थे ना, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि, मतलब उस टाइम में मुझे लग रहा था कि सच में गए हुए हैं, तो मैं क्यों किसी का वेकेशन खराब करूँ। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे बात ही नहीं करनी है इस चीज़ को लेके। बट फिर मतलब ये मेरे को ऐसे करके बोल रहा था, ठीक है, कि टॉक टू मी, टॉक टू मी, टॉक टू मी। तो फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है। नाउ ही इज़ लाइक कि ओके, एंड ही जस्ट सेड ओके, एंड देन ही डिसअपियर्स। फिर इसकी
फ्रेंड ने, एक इसकी फ्रेंड थी, वो भी मेरे से बात करती थी। शी वाज़ लाइक, "ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी ही इज़ विथ यू, ब्ला 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 ब्ला।" तो उसने मेरे को टेक्स्ट किया कि ब्रो समथिंग हैपेंड, एंड आई वाज लाइक, या दिस हैपेंड। ही इज लाइक, ही इज सो एंग्री एंड ही इज जस्ट, मतलब उसको बहुत सुना रहा है, ठीक है, ऐसे करके इंग्लिश में बोला था मेरे को। तो मैंने बोला, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड एंड ऑल दैट, एंड सो आई टेक्स्टेड हिम। नाउ आई एम टेक्स्टिंग हिम कि what's wrong with you, why are you doing this? भाई मेरे को इतना स्टूपिड फील होता है ना सोच सोच के कि क्या मेरे साथ माइंड गेम खेल रहे थे ये सारे मिलके, और मैं हंसते जा रही थी। तो फिर ये सब हुआ ना, उसके बाद फिर he came back and I was like, why did you do that? Why did you ruin everyone's moment? And he was like, I did not ruin anyone's moment. It was important and all that. So he made me feel so special. He was like, कि if someone says something to you and it hurts you in any way, I am going to get back at them. And मुझे लग रहा था कि oh my god, finally a guy who understands। मतलब मैं बहुत खुश थी भाई, तुम्हें पता नहीं है, मतलब तुम्हें पता है मेरी लाइफ के वो जो 4 महीने थे ना, हाँ, इमेजिन नहीं कर सकते तुम मैं कितनी खुश थी। मतलब मैंने एक भी रात ऐसी नहीं गुजारी होगी ना, एक भी रात में ना ओवर थिंक करते करते नहीं सोई हूँ। मुझे हर दिन रीअश्योरेंस मिलती थी, क्योंकि मैं, like I am personally a very insecure and kinda immature person when it comes to emotions, क्योंकि मुझे बहुत जेलेसी होती है, ठीक है। मुझे, आई एम लो की पोजेसिव, लाइक मुझे लगता है कि अगर कोई चीज मेरी है, मतलब कोई इंसान भी अगर वो मेरा है तो वो मेरा रहे ना यार। मतलब वो ऐसे क्या, क्यों किसी के साथ, उसको क्यों चाहिए फीमेल फ्रेंड्स, उसको क्यों चाहिए कि वो किसी और से बात करे। मैं हूं ना, मैं कम आई, एंड यू नो आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, आई स्टार्ट डाउटिंग माई सेल्फ कि मेरे में क्या कमी थी कि उसको उधर जाना पड़ रहा है। And all that happens, and this fucks with my head so bad। तो एंड द थिंग इज कि इतने के बाद भी मैंने एक रात भी ऐसे नहीं गुजारी होगी जहाँ पे मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, जहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि यार ठीक है। तो all that is happening and I am so happy, like those 4 months I'm so happy, I don't give a fuck about the world। And by the way, yesterday was 11th Jan। I met that guy on 24th December, on 11th Jan, on 10th Jan he said कि, sorry, on 10th Jan he said कि इसकी मम्मी को heart attack आ गया है, and he was very like stressed about it। And I was like, okay, like talk to me and everything। He was like, no, I cannot, and you know I should not be dragging you in this mess and all that with me and blah blah blah। But I was like, no, I'm not going anywhere, because that's me, okay? If I am involved with you, if am in any way emotionally connected to you, I won't run away, I don't get scared of vulnerability, I am not that person, ठीक है। तो I was like, okay, talk to me and I'm not going anywhere, you cannot just push me away like this। मैं बहुत स्टूपिड थी। तुम्हें पता है दिस द रीजन मैं इतनी ज्यादा ऐसे हो गई हूँ, क्योंकि अब मैं आई कैन नॉट डू दिस फॉर, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस फॉर एनीवन एल्स। एनीवे, तो आई वाज लाइक टॉक टू मी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते 11 जन को ना बात करते हैं, एंड ही वाज लाइक, यू डोंट गेट इट, आई लव यू, like he just slipped I love you in a very normal conversation। And we were like, he was like, I was taken aback, I was like, huh, what? And he's like, I'm so sorry, I shouldn't have said that, it just came out। And मैं literally I'm like, what? Because हम लोग यार सॉरी 17 दिन पहले मिले थे। तो I was like, what are you saying? I mean, but at the same time it didn't feel wrong, I don't know, it for some reason it just felt so right, it felt like the perfect thing to say। But yeah, but I was like, what are you saying? And he's like, I don't know, I guess I just realized it and it slipped off। Like he played it so cool that I thought that yeah, okay, whatever। Then we started talking, like we were listening to songs, he was sending me songs, I was sending him songs, I was introducing him to Indian music। and मैंने तो आशिकी की आधी प्लेलिस्ट उसको भेज दी थी।
तो उसके बाद ऐसे-ऐसे चल रहा है, फिर एक कोई गाना आता है, ठीक है? सो उसमें एक लिरिक था ना, आई सेड आई लव यू बट शी डिडन्ट से इट बैक, ऐसे करके। तो आई वाज़ लाइक, सी आई वांट टू वेट फॉर अ स्पेशल मोमेंट एंड ही वाज़ लाइक, या आई नो, बट आई वाज़ लाइक, ओके यू नो व्हाट, फक इट, एंड आई सेड दोज़ वर्ड्स टू हिम. That was the first and that was the first time I ever said the three words to any guy. And I don't know when I'll say it next, but yeah, that was the first time. And it just, God, I don't know. मतलब मैं बिल्कुल नहीं बता सकती मेरे को क्या हुआ था उस मोमेंट में. खैर, छोड़ो उसको, हटाओ. फिर ना फ़रवरी आता है, फ़रवरी में ना हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग मिलते हैं, ठीक है? तो ही उसी का प्लान था, मेरा तो प्लान भी नहीं था, उसी का प्लान था कि हम लोग मिलते हैं वैलेंटाइन्स वीक में, क्योंकि वैलेंटाइन्स आ रहा है एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, एंड लाइक उसके लिए तो बहुत बड़ी बिग डील थी. तो ऐसे अब उसी का प्लान था, ठीक है? मेरा तो कुछ मैं मेरे साथ केस ये है ना, सी द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ मी इज़ आई कैन नॉट डेट इन माय स्टेट, इन माय सिटी, इन माय रीजन, क्योंकि माय फादर हैज सो मेनी फ्रेंड्स और मुझे इतना डर लगता है ना. माय एस्केप राउट इज फाइंडिंग समवन हु इज नॉट फ्रॉम दिस एरिया एंड सो आई कैन टॉक टू हिम. मतलब मेरा तो ऐसे डेटिंग का भी ये सीन भी नहीं है. मतलब देयर इज अ रीजन आई डोंट डेट, लाइक इट्स बिकॉज आई एम स्कैर्ड, इट्स नॉट बिकॉज मैं बहुत सीधी सादी सी बच्ची नहीं. मेरी मेरी बहुत फटती है मेरे घर वालों से. तो इसीलिए, ठीक है? तो मुझे डर लगता है. तो अब ही इज़ लाइक कि आई विल बी देयर, ठीक है? आई विल कम ऑन 11th एंड देन वी कैन स्पेंड 4-5 days together and whatever. So I was like, okay, I'll have to plan things accordingly then because मतलब अब मैं स्पॉट नहीं हो सकती थी बाहर, बट मिलना था. तो मैंने बोला ठीक है मैं प्लान करती हूँ कुछ, एंड देन आई प्लान्ड एवरीथिंग, ठीक है? मतलब हर चीज़ मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से कि कहाँ जा सकते हैं ताकि मैं स्पॉट ना हूँ, क्या कर सकते हैं ताकि फन रहे, एंड ही ऑल्सो डज नॉट फील लाइक कि ही ट्रैवल्ड सो फार एंड it's not worth it. I did everything, but he was like, no, you know, just spending a few minutes with you in your presence will be worth every penny. And I don't know. मतलब आई थिंक मेरी गलती, सी यू कैन ब्लेम मी कि 4 दिन पहले आए इंसान पे इतना ट्रस्ट करना इज नॉट, बट आई थिंक मेरी गलती यही थी कि आई जम्प्ड एट द फर्स्ट मोमेंट आई फेल्ट लव्ड. And that's something I will advise you to never do because it does not end well and it never ends well. So, yeah, he said all the right things and we made the plans. सब सही था, ठीक है, सब सही था. And then we were like, okay, coming and all that. फिर 8 तारीख को लाइक 7 को उसने मुझे पूरा दिन घोस्ट कर दिया. उसने मेरे से 1 सेकंड बात नहीं किया एंड मैं वरीड हो गई. फिर मैंने 8 को भी टेक्स्ट किया, उसने 8 को भी नहीं रिप्लाई दिया, नहीं बात हो रही है. एंड फिर मैंने उसकी फ्रेंड को टेक्स्ट किया, ठीक है? तो उसकी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, मुझे कॉल करके बोलती है कि हिज मॉम डाइड. आई एम नॉट किडिंग. शी सेड कि हिज मॉम डाइड. मैं कॉलेज से आ रही थी, मैं ऑटो में बैठी हुई थी एंड मतलब मैं एक ऐसे फेज में हूँ जहाँ मैं सुन पढ़ चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि ही टोल्ड मी कि हिज डैड डाइड 1 साल पहले. तो फॉर हिज मदर टू डाई आई वाज लाइक ओ माय गॉड. एंड मतलब मुझे पूरी आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस एनीथिंग. आई एम लाइक fuck, this is so unfair and everything. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. फिर I'm texting him constantly. He's not replying. It's been 2 days, 3 days. Then he finally replied on, I guess, 12th Feb. I guess 11th or 12th Feb. He finally replies. And I am like, कि क्या, like what happened and everything. He's like, I don't want to ignore you, but it's just I cannot talk and everything. I'm like, you have to talk to me. And I thought that I can fix him, you know. I thought that he has no one, so I think he needs me. And I was fuck delusional, bro. I was fuck delusional. But yeah, that's how you react when you are
गर्लफ्रेंड टू समवन। एंड मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि इन डूइंग सो आई वाज सैक्रिफाइसिंग एवरी पार्ट ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज मैं कुछ पे फोकस ही नहीं कर पा रही थी, ऑन माई academics, on my family, not like nothing. It was all like 24/7. There was one thing in my head, and it was that guy. Like, I just hope he is okay. I just hope he is fine. I just hope he is like, I don't know. I was just, all I could think of was him. ठीक है, तो ये सब हो रहा है। एंड फिर ना फाइनल मतलब फिर वो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, ही वुडंट टॉक अ लॉट बट ही वुड स्टिल टॉक टू मी। एंड देन एक दिन ना मुझे अचानक से ऐसे गंदे तरीके से फील हुआ ना कि ही इज चीटिंग ऑन मी, लाइक मतलब बहुत गंदे तरीके से। एंड पता नहीं मतलब इतनी ऐसे करके मुझे आया ना अंदर से कि ही इज चीटिंग ऑन मी, कि मैंने उसको जाके बोला कि आर यू चीटिंग ऑन मी, बिकॉज दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। एंड दैट मतलब मुझे ना बहुत बार इंट्यूशन आते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना टू वेल अलाइंड लगती थी। मुझे लगता था कि ये कुछ ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो रहा, लाइक नॉट दैट गाय बट लाइक द सिचुएशंस टू। बहुत सारी चीज़ें उसकी फ्रेंड मुझे बताती थी और फिर अगले दिन हो जाती थी। तो बहुत सारे और फिर पता है उसकी फ्रेंड ने मुझे उसकी मम्मी के फ्यूनरल का कार्ड भेजा था। गेस व्हाट, उसकी मम्मी का बर्थडे मेरे बर्थडे के दिन था, लाइक 6 नवंबर। एंड मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब मैंने वो देखा ना मेरा और दिमाग चकरा रहा है। आई एम लाइक व्हाट, ओह गॉड दैट्स सो फक्ड अप, बिकॉज़ मैंने उसको अपना बर्थडे बताया था। अब तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारी मम्मी का बर्थडे किसी के बर्थडे के दिन रहेगा तो तुम्हें तो सबसे पहले तो तुम्हारी मम्मी का बर्थडे याद आएगा ना। बट ही नेवर टोल्ड मी कि हिज मदर्स बर्थडे वाज ऑन द सेम डे एज मी। बट उसकी फ्रेंड ने जब मुझे वो कार्ड भेजा एंड आई सॉ इट, आई वाज लाइक ओ माय गॉड दैट्स सो, मतलब पता नहीं यार मैं क्या, आई डोंट नो। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलूं यार, बट ठीक है, मैं सब मानती थी, मैं सब बिलीव करने लग गई। मुझे क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही चीज था कि आई डोंट वांट दिस पर्सन टू गेट हर्ट, बिकॉज दिस इज द पर्सन हु saved me when I was gonna probably end my life, because उस मोमेंट पे था वैसे कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं सेटल हो रही थी और मुझे लगा कि दिस इज फाइनली माय अपॉर्चुनिटी, माय रीजन टू लिव। तो I don't want anything bad happening to that person, because I don't know what I will do if that person goes away from me. तो मेरे साथ ये केस था। ठीक है, अब ये सब हो रहा है, इसके बाद ऐसे करते करते फरवरी बीत गया, फिर मार्च आया। मार्च पूरा महीना मेरा ऐसे में निकला है कि हाउ कैन आई फिक्स हिम। एनीवे, तो वो हुआ। ठीक है, तो ये सब होने के बाद मार्च भी ऐसे करके कट गया। एंड मतलब ठीक है, एंड मार्च सब फिर ठीक ठीक होने लगा। April आया, 1st April. Now this is the worst part. Okay, so 1st April happens. Second. हाँ, तो 1st April happens and I prank him. I'm like, okay, my parents got to know about you. They checked my phone and everything, and now they're like, you will have to leave him and we'll get you married and all that. And so I was like, okay, I have to leave you and I can't talk to you and I'll not talk to you. फिर मैंने ना ऐसे करके उसके मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया। I was like, I'll talk to you in the evening when I'll get another phone. मतलब I have my spare phone. I'll talk to you from that. एंड ऐसे करके कर रही हूँ, फिर ही इज लाइक प्लीज स्टॉप, प्लीज आई एम क्राइंग एंड ऑल। एंड देन आई फाइनली स्टॉप्ड। I was like, okay, it's a prank. I was fooling you. Guess who was being fooled all the time for the past 4 months? Me. Anyway, तो क्या हुआ ना कि अप्रैल ऐसे करके हुआ, तो फिर 4th April को मैं मैच देख रही हूँ, मैं आईपीएल देख रही हूँ। आई लव आईपीएल, लाइक मैं, दैट इज द ओनली क्रिकेट फॉर्मेट आई वॉच एंड आई लव। मैं अपनी फ्रेंड के साथ देख रही थी, मेरी फेवरेट टीम का मैच था SRH। एंड मैं देख रही थी। ठीक है, अब क्या होता है ना कि मेरी एक कज़न मेरे को टेक्स्ट करती है कि दी आई हैव टू टेल यू समथिंग, बट इट्स very like I don't know how you'll react to it. And I'm like, okay, tell me. And she sends me pictures from Pinterest and I'm like, what the fuck. That was the moment I knew I was being catfished. I found the real account, everything. The thing is कि जब मुझे उसके फोटो मिली भी थी ना, मैंने उसको गूगल और पिंटरेस्ट पे डाल के देखा था, बट नहीं था वो, लाइक मुझे नहीं मिला वो इंसान। एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट, बिकॉज आई डिड एवरीथिंग इन माई पावर, जो मैं कर सकती थी। हाँ, हमने फेस टाइम नहीं किया था क्योंकि हर बार उसका एक एक्सक्यूज हो जाता था, प्लस द बिगेस्ट एक्सक्यूज वाज आवर टाइम डिफरेंस। तो आई डोंट नो, मे बी आई वॉज अ फूल, मे बी आई
ignored so many things because मुझे लगा I was being loved, and I don't blame myself. But anyway, so I got to know and I texted him regarding it, but he never replied. He ghosted me, and that's how it ended. That's how I knew it ended. And I don't know. I still went back to him. I still texted him. I was like, just give me the truth and maybe we can work this out. But he was talking to a lot of girls along with me. So, yeah, that day I felt like the biggest fool alive. But yeah, life happens, okay? चिल 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 लेट्स इसको सेंट ही नहीं करते, ठीक है? तो अप्रैल ऐसे करके मैं डिप्रेस थी, मैं बहुत गंदा डिप्रेस थी, मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या? मैं मुझे कितने मोमेंट पे सांस नहीं आई, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स, इट वाज सो बैड. आई जस्ट couldn't process anything. May was also more or less the same, just a little less painful. But yeah, I think panic attacks ever since then has been one of my best friends now because हर बार आ जाते हैं. But yeah, that happened. तो ये सब होने के बाद ना फिर मतलब मैं ट्राई कर रही थी, फिर मैंने जून में ऐसे हुआ ना कि लेट इट हर्ट अंटिल इट डजंट, क्योंकि लाइफ है, होता है, क्या कर सकते हैं. तो मैंने भी वही करने दिया. आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, होते रहेगा. फिर जुलाई आया एंड मतलब जून में भी, एंड बिटवीन दिस आल्सो लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, ठीक है? कहीं कभी मेरी एकेडमिकली कुछ फक हो जा रहा था, कभी मेरा कुछ कुछ तो हो जा रहा था, कभी फैमिली में चिक 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 मेरा, एंड मतलब बहुत सारी चीजें हो रही थी इन द बैकग्राउंड जो अभी मुझे मतलब याद भी नहीं आ रही है. बट इट वाज वेरी बैड, इट वाज वेरी 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 बैड. फिर आई थिंक जून में भी हुआ था कुछ जो मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा, बट ठीक है. अब ना जून में भी बहुत सारी चीजें हो रही थी इन द बैकग्राउंड, बट अब क्या है ना कि मैं लाइक, फॉर मी द थिंग इज कि आई कैन नॉट सिट विथ अ ट्रॉमा फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन दो इट हर्ट्स मी फ्रॉम विद इन. मैं नहीं बैठ सकती. तो इट्स लाइक ठीक है, छोड़ो, हटाओ, हुआ हुआ, क्या कर सकते हैं, लाइफ है, मूव ऑन करना पड़ता है. तो मैंने किया. आई वाज लाइक ठीक है. And it was going well, I guess, okay-ish. I was processing things. I started writing again because ट्रॉमाटाइज थी. तो मैंने लिखना स्टार्ट किया. पैसे आ रहे थे तो मुझे पैसे तो बहुत पसंद है. फिर सब सही था. जुलाई आया एंड जुलाई भी सब सही जा रहा था until I met this guy like through mutuals. एंड मतलब ऐसे था ना जुलाई में मेरे साथ कि आई वाज लाइक मुझे ये सब तो चिक चिक नहीं चाहिए, बट लाइक आई वांट टू टॉक टू गाइज. मतलब मैं देखती हूँ कि आईआरएल में भी ऑनलाइन था इसलिए प्रॉब्लम हुई. मैं देखती हूँ आईआरएल अगर जो भी है तो देखते क्या होता है. तो मतलब मैंने सोचा कि ठीक है, बात ही करते हैं भाई, फ्रेंड्स ही बनाते हैं. मतलब मेरी गाय इंटरेक्शन जीरो हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, यही करता है. तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम. इनिशियली ही वाज सो गुड. प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो बाप रे बाप, मैं क्या बताऊँ, ठीक है? मैं कॉलेज से निकल रही हूँ, गाड़ी लेके पहुँच जा रहा है, मुझे ड्रॉप करने, पिक करने, ये वो दिस दैट, सब 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 बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट भाई, बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट. तो आई एम लाइक ओके, नाइस वन, फाइन, व्हाटएवर. बट ऐसे करके ना मेरा कभी ये नहीं था कि लाइक ही विल बी समथिंग फॉर मी इन माय फ्यूचर, बिकॉज़ ही नेवर गिव दैट वाइब. तो फिर आई वाज लाइक कि ठीक है, लेट्स जस्ट एंड इट, क्योंकि फिर ही वेंट टू रांची, तो फिर वो बेसिकली ऑनलाइन हो गई थी. एंड मेरे से तो ये होने वाला नहीं है भाई, ऑनलाइन का चक अब तो बिल्कुल नहीं. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, इट्स ओके, लेट्स एंड इट. And then he started disrespecting me. He was like, I don't know, मतलब bullshit. He started speaking bullshit. He was like कि तुम ये, तुम वो, तुम, I don't know, उसका ईगो हर्ट हो गया था या क्या. फिर I was like, are you a fucking man child or what? Like ऐसे कौन बात करता है भाई? एंड देन फिर ना ऐसे करके ही इज लाइक, अच्छा तुमको बताऊं क्या, तुम्हारे साथ रहने के बाद भी ना मेरे ये पे हिक्कीज थे. आई वाज लाइक, cheater exposing himself. Okay, I mean, okay, you just disgusted me more and you just gave me more reasons to never
come back to you. Like, of course, I was not gonna do it in the first place, but now I have more reasons to do that. तो ऐसे करके हुआ, ठीक है, फिर एंडेड लाइक, बट अब मैं बहुत साइकोपैथ टाइप के इंसान हूँ। देखो, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से सब कुछ एंड कर लोगे, मैं कुछ नहीं करूंगी, बट अगर तुमने चिक चिक की है तो मैं मेरा फिर जाता है दिमाग। तो फिर ना मुझे उसकी एक्स की आईडी मिली एक दिन रैंडमली। तो फिर मैंने उसकी एक्स की आईडी पे टैप किया, फिर मुझे उसका मेकअप अकाउंट मिला, तो मैंने उस पे टैप किया, फिर मैंने उसका मेकअप अकाउंट पे नंबर देखा, तो अब मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने ना उसके कॉल कर लिया उधर पे, ठीक है, सलों पे। अब उसने पिक किया, तो फिर हम लोगों ने बोला ना हम लोगों को एक ब्राइडल मेकअप का ना अपॉइंटमेंट बुक कराना है एंड ऑल दैट, ठीक है। ऐसे करके फिर हम लोगों को रियलाइज हुआ ना कि ये लड़का साइको है, तो हम लोगों को ये सब चिक चिक नहीं करना चाहिए, वरना हम ही लोग फंसेंगे। तो वी नेवर गॉट टू हर सलोन। तो शी कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक, आपने बुक किया था अपॉइंटमेंट? तो मैंने बोला हाँ, बट लाइक फिर मैंने उसको सब सच बता दिया कैसे ऐसे हुआ था, एंड शी इज लाइक, ओ माय गॉड, सो ही टोल्ड यू दैट आई चीटेड ऑन हिम? एंड देन शी टोल्ड मी द होल स्टोरी। शी वाज लाइक, ब्रो, you got saved because you don't know what kind of a guy he was. And that's so pathetic because he was someone who, well, he was someone who literally uh, convinced her to have a threesome with someone who he fucked already. Like, मतलब, he manipulated her so bad, and I feel so bad for the girl because she is so sweet. Trust me, she's so sweet, and we kind of vibed, and it was good. ठीक है, मतलब हम लोग अभी भी बात करते कभी कभी। तो she is a very sweet girl, but he manipulated her so much, and like he was, oh my god, it was so pathetic. मैं तो बता भी नहीं सकती क्योंकि it's her story to tell, not mine. Anyway, that happened. तो सितंबर में तो मेरा पूरा मर्द जात से भरोसा उठ गया था। मैंने बोला कि प्लीज, मेरा बहुत हो गया है। हाँ, अगस्त में ये सब हुआ था, बाय द वे। जुलाई का तो बता दिया, फिर अगस्त में ये सब हुआ। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी मिली थी, तो दैट वाज अ गुड थिंग अबाउट अगस्त में। हम लोग 2 दिन मिले थे एंड वी हैड फन, लाइक, हाँ, दैट वाज अ गुड पार्ट अबाउट अगस्त। फिर सितंबर में तो मेरा पूरा एकदम भरोसा उठ गया। मैंने बोला कि बस, बस भाई, बस मेरे से ये जात दूर रहे, क्योंकि मैं इन लोगों का मुंह नहीं देख सकती अब। मैं भगवान से लिटरली प्रे करती हूँ कि भगवान मुझे बना दो यार लेस्बियन, बिकॉज मैं अगर इतू सी भी बाइसेक्सुअल होती ना भाई, मैं इतू सी भी बाई, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं गर्लीज के अलावा इन लोगों से तो। एंड भाई, अगर तुम लोगों को लगता है, इफ यू आर अ गाय वाचिंग दिस एंड यू फील ऑफेंडेड बाय इट, यू शुड जस्ट सी व्हाट योर काइंड हैज डन टू मी। लाइक, एंड प्लस मेरा तो फर्स्ट हैंड ट्रॉमा इतना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड का जो ट्रॉमा जो मुझे मिला है सेकंड हैंड, उसका क्या करूं? लाइक भाई, insecure guys who just are not ready to give you commitment, but they want everything other than the commitment. And when you get attached and when you want to like have that commitment, have that bond with them, they are like, no 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 no, मेरे साथ पिछले वाली ने ऐसा किया था, अब मैं नहीं। उसके बाद गाइज हु लिटरली, मतलब वो अपनी एक्स के घर पे, उनके घर के सामने उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्स के घर के सामने क्या करने गए थे बेटा? हम्म हम्म। भाई मेरा मतलब, उसके बाद फिर गाइज हु चीट एंड देन द गर्ल्स स्टिल एक्सेप्ट देम बैक। मतलब गाइज, भाई मैं तो क्या, ऐसे ऐसे मैं सबकी स्टोरी यही है भाई, तुम्हें मैं बता रही हूँ, मैं सबकी स्टोरी यही है, तो मैं कैसे कर लूँ भरोसा? समझ रहे हो? एनीवे, तो गाइस हटाते हैं, अब गाइस को छोड़ के बताती हूँ। सो सितंबर में तो भाई ये सब होने के बाद आई वाज लाइक कि अब मुझे खुद के लिए कुछ करना है, अब मुझे खुद की लाइफ पे फोकस करना है, बिकॉज मैं अब ये सब चिक चिक में नहीं पढ़ सकती। और ये तो मैंने स्टार्ट किया प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, पर मेरा एग्जाम्स आ गया था, तो सितंबर में एग्जाम्स वो निकला। फिर बाकी अक्टूबर में आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगी या फिर मैं कुछ तो करूंगी टू लाइक स्केप दिस शिट होल। एंड तुम ये सब सोचो, ये सब होने के साथ साथ मेरा कॉलेज भी चल रहा है, एंड मेरा कॉलेज इज लाइक, एक तो ऑल गर्ल्स, ऊपर से इतना स्ट्रिक्ट ना कि आपको सांस लेने में भी घुटन होगी वहां पे, ठीक है, ऐसे ऐसा जगह है। तो ये सब हो रहा है, ठीक है, एंड अगर आप मतलब वहां यूनिफॉर्म वाले दिन यूनिफॉर्म नहीं पहन के जा रहे हो, अगर आप ये वाली बुक्स नहीं लेके जा रहे हो, अगर क्या नहीं, तो कुछ भी नहीं कर रहे, अगर आप गलत तरीके से सांस भी ले रहे हो ना, तो यू विल बी पनिश्ड फॉर इट।
तो ऐसे ये सीन भी चल रहा है, तो मुझे उधर भी अपना दिमाग लगा के चलना है, तो ये सब भी हो रहा है। तो और प्लस मेरी फैमिली मतलब कुछ टाइम ठीक रहती है और उसके बाद इनके अपने कलेश चलते हैं, तो मतलब मैं किधर से भी मुझे जो शांति मिल जाए नहीं मिल रही है। तो ये सब होने के बाद ना फिर क्या होता है कि अक्टूबर में मैंने सोचा कि ठीक है करते हैं, कुछ तो करते हैं। तो नवंबर में मैंने फाइनली मतलब पहला तो मेरा बर्थडे मंथ था, तो पहला हफ्ता तो मेरा बर्थडे 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 करते निकला। फिर दूसरा हफ्ता मुझे अब फ़ोन चाहिए, मुझे नया फ़ोन चाहिए, मुझे मुझे गिफ्ट में फ़ोन चाहिए। मतलब मेरे पास एक फ़ोन था बट मुझे एक और चाहिए क्योंकि मतलब मुझे चाहिए था यार। मैं 2-3 साल हो गए थे फ़ोन को और मतलब स्टोरेज भी भर गई थी। तो मैंने बोला मुझे फ़ोन चाहिए, तो उसमें निकला। उसके बाद मुझे फ़ोन मिला, फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया फाइनली। तो दिसंबर में मैं कंटेंट क्रिएशन वगैरह कर रही थी बट फिर ना मेरा ट्रॉमा रिसर्फेस हो रहा था। फिर ही टेक्स्टेड मी 1 दिसंबर को एंड ओ गॉड मतलब एक होता है ना कि आप खुद को जोड़ जाड़ के फिर से ऐसे करके आगे बढ़ रहे हो एंड तभी तो आई वाज लाइक कि मतलब फिर बट मैं ना मेरा एक ऐसे ये फेज हो चुका है कि पसंद तो बहुत है पर अब चाहिए नहीं। तो आई वाज लाइक बट आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड ही इज लाइक कि मुझे जेल हो गई थी। मैंने बोला वाओ बिल्कुल सही हुआ, तुम्हारे साथ होना चाहिए था, सही जगह गए थे। फिर ही इज लाइक कि बट आई एम गोइंग टू गिव यू एवरी प्रूफ यू नीड, आई एम गोइंग टू फेस टाइम यू, वी आर गोइंग टू डू मेक इट वर्क, प्लीज 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 प्लीज। तो आई वाज लाइक ठीक है प्ले अलोंग करती हूँ, मुझे इसका चेहरा क्योंकि देखना है कि ये कौन है। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग अलोंग। चेहरा देख पाती उससे पहले फिर से घोस्ट कर दिया। इफ यू थिंक यू कैन हर्ट मी, you should know what I have gone through and you won't even dare think that। तो हाँ मतलब घोस्ट कर दिया, तो क्या करूँ, कर दिया तो कर दिया। फिर वो हुआ, उसके बाद ना मैंने एक रील बनाई थी कॉलेज में, ठीक है। अब हमारे कॉलेज में भाई, अब तुम बताओ, नहीं मैं नहीं बोलूंगी भाई, मैं बोलूंगी मुझे फिर से सस्पेंड कर देंगे शायद। तो मैंने क्लासरूम में एक रील बनाई थी, इट वाज नॉट ऑफेंसिव ना मैंने कॉलेज का नाम लिया था ना किसी को पता चल रहा था कि वो कौन सा कॉलेज है। बट हमारे कॉलेज वालों की थोड़ी ईगो हर्ट हो गई थी, तो उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया 1 हफ्ते के लिए, मेरा फ़ोन छीन लिया था। एंड मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया यार, क्योंकि मेरा नया फ़ोन था, छीन लिया। फिर मेरे को 1 हफ्ते के लिए लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स पढ़ रही थी और ये वो दिस दैट मतलब ये सब चल रहा है। फिर मैं घर आई, फिर मतलब फिर कुछ तो एक हुआ एंड मतलब मुझे लग रहा था ना कि मैं जो जब लाइफ अपना बटोरने की कोशिश कर रही हूँ वो भर पे टूट जा रहा है। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा किसी का क्या बुरा कर दिया है कि ये हो रहा है मेरे साथ। Like, I am convinced, ठीक है, I have never done anything bad to anyone to deserve this kind of treatment from God, but I don't know भाई, I don't know, ठीक है। मतलब तुम लोग होते हो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, मैं गॉड की फेवरेट पता नहीं क्या हूँ, ठीक है। मतलब भगवान, तुम्हें लगता होगा ना कि इतना बुरा करने के बाद भगवान को लगा होगा कि मतलब ठीक है अब इस पे थोड़ा तो रहम खा जाती है, ये भी तो इंसान है, इसकी भी फीलिंग्स है। तो मुझे बताओ, तुम्हारा जो फुटबॉल होता है, तुम उसको कितना भी किक करते हो तो तुम्हें ऐसे लगता है कि अब नहीं करते हैं, इसको भी कुछ ऐसे फील होता होगा। नहीं, मैं भगवान की फुटबॉल हूँ, ठीक है। मैं वो फुटबॉल हूँ जिसको वो किक करते रहते हैं, जब जब उनको मन नहीं लगता ना, जब जब उनको लगता है कि कुछ तो लाइफ में फन चाहिए, कुछ तो मुझे किक करता है, मैं किक होती हूँ, ठीक है। तो ये वही होता है मेरे साथ एंड इसीलिए मैंने तो ये सब ना भ्रम पालना भी बंद कर दिया है कि ओह 2026 विल बी माय ईयर, 2027 विल, कुछ ईयर नहीं होने वाला है उनका। फिर जब मन करेगा ना कि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में, तो वो फिर किक लगाएंगे एंड मुझे उसके लिए बस प्रिपेयर्ड रहना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरी लाइफ में, ठीक है। अब इसके बाद भाई तुम्हें पता है मतलब कि
हाँ, तुम सोचो मैं ऑलमोस्ट ट्रैफिक होते-होते बची हूँ, क्योंकि वो बंदा वो 4 महीने से जो मेरे साथ कर रहा था भाई, अगर तुम मुझे बताओ वो क्यों ही करेगा? क्योंकि मतलब इमोशनली इट वाज़ नॉट इवन लाइक वी वर हैविंग एनी सेक्सुअल कन्वर्सेशन, वी नेवर हैड एनी सेक्सुअल कन्वर्सेशंस, लाइक तुम सोचो, because it was like कि let it build, we just have 4 months we have spent together, let it build, let us spend more time together, and it was coming from his side. मैं तो मैं इतनी शरीफ नहीं हूँ भाई, मैं इतना इतना बिल्डअप क्या होता है भाई, मेरे लिए नहीं होता, बट इट वॉज कमिंग फ्रॉम हिज साइड एंड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम इवन मोर. तो भाई तुम सोचो कोई क्यों करेगा ऐसे, एंड कोई मेरे साथ ही नहीं बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे कर रहा है, तो क्यों करेगा. एंड फिर वी वर लाइक, मैं एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही हूँ एंड सडनली दिस थॉट कम्स टू माई माइंड कि what if he just he was manipulating me all the way, so I trust him completely, so I abandon everyone in my life and just think he is the only person who's my savior, he's the only person I can go to. And then when he knows I trust him that much, he does something like that. And matlab, when that thought came na, I literally had goosebumps all over my body, and it felt like the most rational thing to think, like it felt like, and that's why I know he was involved in any of that. And that's so scary because, but yeah, at the same time I guess I'm lucky because I did not get trafficked. So that was how my year went. I fell in love with a human trafficker, I guess. His faked his mother's death. मेरे ट्रस्ट इश्यूज का तो यहाँ से जो यहाँ गए हैं मेरे, वो तो मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ. एंड लाइक आई सॉ अ लॉट ऑफ फेसेस ऑफ men this last year. एंड इस बार तो भाई 10 दिन में ही जितने एक्सपोज हुए हैं, आई डोंट नो. मुझे भगवान जी प्लीज लेस्बियन बना दो. मुझे नहीं फर्क पड़ता यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता दुनिया क्या बोलेगी, मैं हैंडल कर लूंगी, बट मैं आई डोंट नो. और नहीं तो अगर कोई बंदा है तो प्लीज प्लीज वो शायद से ना, वो मतलब 100 साल पहले जम गया हो और फिर अभी वो उस ऐसे करके निकला हो, वो आइस से, तो उसको पूरा दुनिया का पता ही नहीं है सीन क्या है, और वो मतलब मेरे से प्यार करे बस एक ही एकदम, क्योंकि उसको उसको बस मैं ही दिखती हूँ, तो वो उस तरह, मतलब अगर ऐसा कुछ अवेलेबल है भगवान जी तो आप देख लो, वरना मुझे नहीं पता मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने हाथ धो लिए हैं भाई, और 2025 हैज नॉट बीन काइंड टू मी एट ऑल. अब इसीलिए मैंने इस साल ग्रेप्स नहीं खाए हैं. एंड टच वुड, अभी तक तो ये साल ठीक लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या होगा, बट भगवान जी प्लीज, आई एम नॉट योर ब्रेवेस्ट शोल्डर, आई एम नॉट, आई एम द वीकेस्ट, आई थिंक आई एम योर फेवरेट फुटबॉल, बिकॉज मुझे तो वही लग रहा है, क्योंकि आपको जब भी किक चाहिए होता है आप मुझे किक कर देते हो, और मेरी लाइफ की किक की कहाँ हो जाते मतलब मुझे समझ भी नहीं आता. ठीक है, ऑल्सो ये सब एल लगने के बाद एक चीज जो मेरे साथ अच्छी होती है इज माई पीरियड्स टाइमिंग. इस चीज में मुझे लगता है कि मैं गॉड्स फेवरेट किड हूँ. अब मैं बताती हूँ क्यों. आई हैव गुड एक्सप्लेनेशन फॉर इट, आई गेस. मतलब जब भी ना मुझे कहीं बाहर जाना रहता है, तो या तो मुझे डर लगते रहता है कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं. मैं पूरा टाइम पैनिक करती हूँ बट नहीं आते हैं. मैं जब ट्रिप से वापस आ जाती हूँ तब आते हैं, या फिर अगर कुछ 1-2 दिन का काम है तो वो पहले ही आ जाते हैं. एंड इट वर्क्स लाइक दैट. तो आई रियली सेव माई सेल्फ फ्रॉम सो मेनी एम्बेरसमेंट्स a lot of times, and it happens every time. मतलब मेरे बर्थडे के टाइम भी, मेरे बर्थडे से 5 दिन पहले की डेट थी बट मेरे बर्थडे के बाद आई थी. उसके पहले दुर्गा पूजा था तो दुर्गा पूजा के पहले आ गई थी. तो इट हैपेंस. सो दिस इन दिस डिपार्टमेंट आई एम गॉड्स फेवरेट किड. नजर ना लग जाए भगवान इस चीज को भी. एनीवे, so that was it. That was how my year went, जितना आप लोगों को जानना था. So if you watched this video till here, please take some notes and save yourself from embarrassment and from possible human traffickers and serial killers and whatever. ठीक है, क्योंकि you never know. And also, I just want you to trust the guys. Trust me. Like if they say
they are bad, they are bad. Like if they tell you, oh baby, I'm a very bad boy, yes, they are bad, they're bad, you cannot fix them. Please मत सोचना कि I can fix him. You can't. So don't even try. वो कुछ भी बोले ना तुम मान लो, अगर वो तुम्हें बोल रहे हैं कि I will make your life a living hell, they will. You know, if we start dating, you will see a very demonic side of me. Nee, if you don't act this way, you'll see a very demonic side. You will see. So choose the guys wisely. Until the next video, I guess bye. And मेरे outros बहुत खराब होते हैं, मुझे पता है, मैं अच्छा कर भी नहीं सकती इसको. So bye.